In continuation of our topic, we have seen till now the channels, the ion channels, the type of ion channels, the mechanism of opening of ion channels, and we have seen a specific ion channel which is sodium potassium ATPase ion channel. Now we are discussing some two important ion channel which take part during nervous conduction. The one is voltage gated sodium ion channel, and second one is voltage gated potassium ion channel. There are some important facts. As you know, this is a cell, और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है प्रीडोमिनेंटली सोडियम बाहर ज्यादा होता है, प्रीडोमिनेंटली पोटेशियम बाहर अंदर ज्यादा होता है. रिगार्डलेस की थोड़ा बहुत पोटेशियम बाहर भी होगा, थोड़ा बहुत सोडियम अंदर भी होगा, वी आर डिनोटिंग मेजॉरिटी ऑफ आयन कौन सा कहां पर है. तो सोडियम इज मोर आउटसाइड इन द सेल, पोटेशियम इज मोर इनसाइड इन द सेल. तो देयर इज अ चैनल, like this is a channel by which only sodium ion can come inside. Yeah, only sodium influx can occur like this. Sodium can move across through this voltage gated ion channel when it is open. This is called sodium voltage gated ion channel. Similarly, here is another ion channel which causes efflux of potassium. This is potassium voltage gated ion channel. So there are some specificities of these two ion channel, like one is only allow movement, and in which direction? The direction is influx, out to in, or we can call it influx. Similarly, what is about potassium ion channel? It allows potassium only and efflux. That means potassium will go through this channel from inside to outside. These are two facts about the sodium and potassium gated ion channel. Now, these channels are fast. What does it mean by fast? Fast to open and fast to close. That means they will open for shorter period of time. In contrast of this, if we look upon potassium ion channel, these are slow channel, open later than sodium channel, and they are slow to close. That means they remain open for the longer period of time as compared to sodium ion channel. Remain open for longer duration as compared to the sodium gated ion channel. These are two typical ion channel present on the cell membrane or the neuronal cell membrane, this membrane. Now, we have to look about the status of सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या स्टेटस हो सकते हैं. हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन का क्रॉस आयनिक मूवमेंट होता है, हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड अलग अलग आयन की कंसंट्रेशन होती है, अलग अलग चार्ज ग्रेडियंट होती है. तो देयर आर प्रिसाइसली थ्री स्टेजेस ऑफ एनी मेम्ब्रेन. द स्टेज नंबर 1 इन विच मेम्ब्रेन इज more positive than at outside and more negative inside, and this is called typical polarity. The polarity is the positive charge at outside surface of the cell and the negative charge at inside surface of the cell, and this is called
polarized membrane and it is found at rest. We can call it resting membrane. This is the status number 1. So now status number 2. When the nerve is doing conduction, the impulse is transmitting across the cell, that means there must be some electrical disturbance. And what causes that electrical disturbance? The ionic flow. The membrane is still positive, but at one point, let's say through one channel, the positive ion comes inside, and here the negative, this negative become positive, rest of the negatives are still negative. Now, as you know, this is the positive, this is the negative, and the electron travels back, or we can say the positive will migrate forward. So, what will be the status? Eventually, this become negative, negative, this plus goes there. Now, this negative, this plus goes there. Likewise, this positive ion will travel across the cell membrane, and at this place, during this status, the polarity is disturbed. Now, membrane is not actually polarized anymore. This is called depolarization or depolarized membrane. Depolarization or conduction present here, a conduction is occurring here, and this membrane is called depolarized membrane. That means nerve is conducting the impulse. After this prolonged conduction, after this continuous conduction, what will happen? Finally, this neuron become reversely polarized. Later on, it become reversely polarized, but so we can say here if this charge depolarization or this electrical disturbance shown at the terminal of neuron, that means impulse conduction is almost done. Impulse conduction is almost done, and the impulse reaches up to the terminal. This is the end of the conduction, but we will see in a while how the ion movement will proceed. Then eventually this membrane become more negative. This membrane will become more negative than earlier inside. Like we can say initially it was at minus 70 millivolt. Now it will be at approximately minus 90 millivolt. यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अंदर नेगेटिविटी थी या जो उनके बीच का डिफरेंस था, वो डिफरेंस पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम जब पोलरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो जैसे पॉजिटिव अंदर आ रहा है तो हम पॉजिटिव को वापस बाहर भेजते हैं, तो अंदर का सरफेस नेगेटिव होता है. वी नीड टू अटेन दिस पोलरिटी बैक. तो इस केस में मेम्ब्रेन क्या करती है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन बाहर भेज देती है, और फॉर द ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम ये जो अंदर नेगेटिव बनना चाहिए था, ये जो डिफरेंस माइनस 70 मिलीवोल्ट आना चाहिए था, ये टेम्परेरीली और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, माइनस 90 मिलीवोल्ट हो जाता है. इफ वी कॉल इट पोलराइज, दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन. हाइपर पोलराइजेशन. Membrane potential is more negative than RMP, or we can say membrane potential is way lesser than RMP. This is called hyperpolarized state of cell membrane. So initially the membrane is a neuron is ready to conduct do conduction. This is called polarized membrane, a polarized state. This is the conducting neuron, depolarizing neuron, या depolarized state, and this is
after the conduction it is hyperpolarization or hyperpolarized state. During this, the resting membrane potential or the membrane potential is minus 70 millivolt. In this case, the membrane potential lies between threshold value and approximate equals to the maximum peak value. We are going to see a graph of this in a while, so we will understand better what is the peak value. The membrane potential is between threshold and peak value, और ना यहाँ हम बात करते हैं membrane potential is approximately minus 90 millivolt and this is way lesser than the RMP. So now we are going to see the graphical representation of this membrane potential and the membrane status. So we already discussed this before in a short. This is the membrane potential axis in millivolt. This is the time axis in millisecond, and this is the resting value, RMP, resting state. And what will be the value? Common value is minus 70 millivolt. Although I told you before, this can vary. This can vary from neuron to neuron, or this can vary from muscle to muscle or any other effector organ. This is the resting value. This is the threshold value. And approximately it is minus 55. As per standard data, it is minus 55. If it can vary, it can also vary. This is your zero level. What is the zero level? Here the potential is becoming positive, या become less negative, and it is equals to 0. This is the absolute zero value. This is not O. This is not any landmark. This is just zero value. And it is then later on it is the higher value than 0, positive, like we can say here 10, we can say here 20, 30, 40, likewise. Minus 70, minus 55, 0, 10, 20, 30 and plus 40. These are plus values. This is the potential axis. What is this? This is the time axis. So we are going to represent something here. This is the status of membrane for now. What is this? This is resting membrane potential. Membrane potential lies, stays on this level. As soon as the impulse comes to the cell membrane, the potential start to rise. If potential fail to attain the threshold value, it will goes down due to the ये वाला जो potential है, ये वाली जो value यहाँ आई है, which could not make the conduction. That is called, what is this called? You can call it in your mind graded value, graded potential. And ये वापस नीचे चला जाता है because of some ionic activity, some channel ionic activity. What will be the ion channel activity here? बैलेंस करने का काम कौन सा चैनल करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप. दिस विल वर्क हियर. तो ये वाला हो गया. अगर एक प्रॉपर इंपल्स आता है, व्हाट इज द प्रॉपर इंपल्स? प्रॉपर इंपल्स इज द इंपल्स विच इज मोर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड. यानी एक बार द मेम्ब्रेन में आपके अगेन यहां पे इस तरीके से चेंज हुआ, सपोज दिस इज द नेक्स्ट वैल्यू, और ये थ्रेशोल्ड को अटेंड कर लेता है. अगर ये थ्रेशोल्ड को अटेंड कर लेता है, ड्यूरिंग दिस द मैकेनिकल वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी ओपन. आफ्टर अटेनिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू, द रैपिड आयन चैनल विल बी ओपन. एंड व्हाट आर द रैपिड आयन चैनल? These are the rapid ion channel जो फास्ट ओपन होते हैं और बहुत कम टाइम के लिए एक पर्टिकुलर चैनल ओपन होता है. तो जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आती है, ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा वैल्यू आती है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं एंड मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डीपोलराइज. और जैसे जैसे आपका बाहर से प्लस अंदर आता जाता है मूव करते हुए, आपकी अंदर की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है. यानी कि एक ग्राफ अब राइज होना स्टार्ट हो जाता है. First, it reaches up to 0. This is the 0 value. This reaches up to 0. And eventually, it reaches up to approximately 30 millivolt like this. This graph reaches here. During this phase, what is this called? This is called depolarization. This is the peak value. What is this? This tip. This is the
peak value we have discussed lesser than peak membrane potential हमेशा threshold during depolarization membrane potential threshold और peak के बीच में यहीं कहीं लाया करेगा. this is the meaning of that statement. this is the threshold value, this is the peak value और इसके बीच में आपका actual membrane potential at a time lie करेगा during depolarization. तो what is this phenomena? this white color graph from here to peak. ये वाला जो आपका ग्राफ है, वी कैन कॉल इट ग्राफ नंबर 1. दिस सेगमेंट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन. एंड इस टाइम पे आपके कौन से चैनल्स ओपन थे या कौन से चैनल ओपन होंगे? इस टाइम पे आपके ओपन होंगे सोडियम चैनल. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आर ओपन एंड दे causes the depolarization of cell membrane. When the graph attain the peak value, the potassium ion channel are now opened. और वो क्या करते हैं? पोटेशियम का ई फ्लक्स स्टार्ट कर देते हैं. तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर की तरफ लेस नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव हुआ था, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. तो आपका जो ग्राफ है वो अगेन फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. लाइक ये फॉल होता है, जीरो क्रॉस करता है, थ्रेशोल्ड अगेन वापस आता है, रेस्टिंग तक आ जाता है. इसको हम बोलेंगे दिस इज द ग्राफ नंबर 2. एंड इस केस में क्या ओपन है? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन है. बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. अभी तो पहले पढ़ाया था कि ये जो चैनल्स होते हैं ये लॉन्गर टाइम तक ओपन रहते हैं, ये ज्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं. और ये करते क्या है? अब जब ये चैनल क्लोज हो जाने चाहिए थे, अगर चैनल ओपन रहेंगे पोटेशियम आयन बाहर जाता रहेगा. अगर पोटेशियम आयन बाहर जाता रहेगा तो अंदर की तरफ नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी. हमारा टारगेट था कि रेस्टिंग वाली कंडीशन अटेन हो जाए, बट ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज आपके जो चैनल थे वो ज्यादा लंबे टाइम तक ओपन रह गए. उन्होंने रिक्वायरमेंट से ज्यादा पोटेशियम आयन को बाहर भेज दिया, और जब बाहर भेज दिया तो ये वैल्यू -70 की जगह रिड्यूस होके इवन और ज्यादा नेगेटिव हो गई, -90 तक नेगेटिव हो गई. दिस वैल्यू कैन बी अप्रोक्सीमेटली -90 मिलीवोल्ट. तो ये आपका आया सेगमेंट नंबर 3. सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3. इस ड्यूरिंग द सेगमेंट नंबर 3 कौन से चैनल ओपन है? आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ही ओपन है. इसके बाद क्या होता है? यहां के बाद आपका कंडक्शन स्टॉप हो गया. अब ये आगे ग्राफ कंडक्शन नहीं शो करेगा, बट हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. हमें चाहिए इक्विलिब्रियम, हमें चाहिए रेस्टिंग कंडीशन. सो अगेन यहां पे वही चैनल्स ओपन होते हैं जो हमेशा बैलेंसिंग के लिए ओपन होते हैं और ग्राफ को अपनी नॉर्मलाइज कंडीशन में लेकर आते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ दिस हाइपरपोलैरिटी. स्टेज नंबर 4 आप इसे कह सकते हो, ऑल्दो एक ही फॉर्म में काउंट होता है, बट समझने के लिए हम कह सकते हैं. और यहां पे आपके फिर से वही चैनल ओपन होंगे जो हमेशा बैलेंसिंग का काम करते हैं. दैट आर सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल. ये चैनल कभी भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. इन चैनल की वजह से कभी कंडक्शन नहीं होता. अगर आपको ऐसा लगता है, किसी ने ऐसा बताया है, आपने कहीं पढ़ा है या कोई पढ़ा दे कि सोडियम इसकी वजह से अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, नो. हमेशा पोटेशियम इस आयन की वजह से अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा, सो दैट जो भी फिनोमेना यहां पे डिस्टर्ब होता है हम उसको रिवर्स कर सकें. हमेशा ये पोटेशियम का इनफ्लक्स करेंगे और सोडियम का आउटफ्लक्स करेंगे. इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में अभी देखने वाले हैं. बट नाउ ये मेम्ब्रेन अगेन आपकी रेस्टिंग कंडीशन पे आ गई. बैक टू resting as the membrane meets to the resting membrane potential. So these are some steps. Now there are some notations also. क्या क्या notation है? This value, अगर आपको ऐसा ग्राफ डिजाइन करके दिया जाता है तो this value from resting to here, this value is called the threshold value, as you all know. This is the zero mark. and ये ग्राफ जीरो के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है, लाइक यहां से यहां तक, मोर देन जीरो, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है इसे हम बोलते हैं ओवरशूट. अगर ये +10 तक जाता तो ओवरशूट वैल्यू विल बी द +10. अगर ये 20 तक जाता तो 20, 30 तक गया तो ओवरशूट वैल्यू विल बी 30. दिस स्टेप इज कॉल्ड पीक. एंड ये वाली जो आपकी वैल्यू थी, यहां तक की जो आपकी वैल्यू थी, दिस वैल्यू इज थ्रेशोल्ड वैल्यू. एंड ये जो पूरा पीक तक की वैल्यू है, फ्रॉम रेस्टिंग टू द पीक, ये जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू कहलाती है एक्शन पोटेंशियल.
इस टर्मिनोलॉजी में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा थ्रेशोल्ड है, कौन सा एक्शन है, कौन सा ओवरशूट है। जीरो लैंडमार्क को क्रॉस करके ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, दैट वैल्यू, दैट सेगमेंट विल बी कॉल्ड ओवरशूट, द टिप विल बी कॉल्ड द पीक, एंड द एंटायर वैल्यू फ्रॉम द रेस्टिंग टू पीक, दिस विल बी कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। द सर्टेन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हैज टू बी क्रॉस्ड, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। सो जो भी ऐसे पोटेंशियल हैं जो कि दे कुड नॉट मेक द conduction, they could not cross the threshold value, these are called graded potential। ये एक रेड कलर से आपने शो किया है, थोड़ी सी हाई वैल्यू है बट स्टिल लेसर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, द ग्रीन कलर इज मोर लेसर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो ये सब कहलाते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। एंड इस ग्रेडेड पोटेंशियल को या इवन आफ्टर कंडक्शन कोई भी पोलैरिटी को आपको रीगेन करना है, पोलैरिटी को रीअटेन करना है, तो उसमें जो चैनल्स काम करेंगे वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल काम करेंगे। तो यहां जो हमने नोटेशन दिया है, द ग्राफ नंबर 1, द ग्राफ नंबर 2, द ग्राफ नंबर 3 एंड द सेगमेंट नंबर 4, हम इसको एक सीक्वेंशियल या फ्लो चार्ट फॉर्म में देखते हैं। द सिचुएशन नंबर 1 विच इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, this is called depolarization। the situation number 2 that is called repolarization। you can see here depolarization, repolarization। situation number 3 is hyperpolarization। what are these? These are the status of membrane, we have discussed it before। and the situation number 4, इसको सिर्फ हम डिजाइन कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को पूरा मेकअप करने के लिए, इसको हम बोलते हैं रीगेन पोलैरिटी। ड्यूरिंग दिस कौन से आयन चैनल ओपन रहेंगे? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। ड्यूरिंग दिस जब पीक वैल्यू पे आप पहुंचते हो, जब आप पीक वैल्यू पे पहुंचते हो तो पीक वैल्यू पे क्या होता है? पहला फिनोमेना कि ऑलमोस्ट जितने भी सोडियम चैनल ओपन थे वो अब क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जितने भी पोटेशियम चैनल थे वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक दिस। तो यहां हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स आर ओपन, ड्यूरिंग दिस पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स आर ओपन। एंड ये क्यों आता है, ये सिचुएशन क्यों आ पाती है? because longer time and ये हम कैसे कर पाते हैं? with the help of अगर हम मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग की बात करते हैं तो ड्यूरिंग दिस conduction is occurring, conduction is present, during this conduction is still occurring, but during this no conduction। और ये कंडक्शन क्यों है? बिकॉज यहां तक तो आपका कंडक्शन हो रहा था, बट जैसे ही ये ग्राफ रेस्टिंग तक पहुंचेगा कंडक्शन आपका फिर से खत्म हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो एंड टर्मिनेशन ऑफ कंडक्शन at its end, as soon as hyperpolarization begins there is no conduction, no conduction। when graph is proceeding, when graph is uplifting or the membrane is depolarizing, ये membrane यहां तक
इस सेगमेंट तक कोई भी नया इंपल्स परसीव कर सकती है, बट ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एंड ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन बिफोर बैक टू द नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग दिस सेगमेंट, अगर हम इसको यहां पे व्हाइट कलर से डिनोट करें तो ड्यूरिंग दिस सेगमेंट न्यूरॉन कोई भी नया इंपल्स रिसीव नहीं करेगा, बिकॉज न्यूरॉन ऑलरेडी फटीग हो चुका है, उसके पोलैरिटी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है, एंड अभी इसकी प्रायोरिटी है अपनी पोलैरिटी को रीगेन करना। तो ये पीरियड फ्रॉम द पीक to the resting condition, the again new resting condition, इस पीरियड में कोई भी नया इंपल्स न्यूरॉन रिसीव नहीं करता। तो ये टाइम पीरियड, टाइम एक्सिस पर अगर हम बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड कहलाता है रिफ्रैक्टरी टाइम पीरियड। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है वो टाइम जिसमें ये अपना फंक्शन एग्जिबिट नहीं कर सकता, इट नीड्स रेस्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी फटीग, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर द टाइम पीरियड विल बी कॉल्ड refractory period. No any new stimulus will be entertained during this time period. इस समय अगर कोई नया इंपल्स आता तो मे बी न्यूरॉन उसको ऐड कर सकता है, या मे बी न्यूरॉन उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकता है इन सर्टेन कंडीशन लाइक टिटनस वगैरह, और बहुत सारी चीजें होती हैं। बट ड्यूरिंग दिस फेज इफ न्यूरॉन इज ड्यूरिंग दिस फेज न्यूरॉन कोई भी नए इंपल्स को एंटरटेन नहीं करेगा। तो अगर हमने ग्राफ के सेगमेंट देखे, डीपोलराइजेशन, repolarization, hyperpolarization and the maintain of regain of polarity, and this is the new resting membrane condition. Now neuron is ready onwards to receive a new stimulus or to respond or to conduct a new stimulus. तो यहीं पे हमने इसकी डिटेल देखी जो आपको पता होनी चाहिए। 3-4 सिचुएशंस हैं, चारों में कौन कौन सा चैनल प्रीडोमिनेंटली ओपन रहते हैं, और अगर हम इनके आयनिक फ्लो की बात करें, अगेन वी कैन रिवाइज हियर। इस केस में क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स होगा, और वी कैन से इन अ न्यू पैटर्न इफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर ओपन, ये क्या कॉज करेंगे, ये कॉज करेंगे आपका सोडियम इनफ्लक्स। अगर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये ओपन है, ये क्या कॉज करेंगे, ये रिजल्ट करते हैं इन पोटेशियम इफ्लक्स। और फाइनली हम स्पेसिफिक मेंटेनिंग चैनल की बात करते हैं, मेंटेनिंग पंप की बात करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये क्या कॉज करेंगे, ये आपका कॉज करेंगे यहां पर 3 sodium out plug and via the antipode mechanism to potassium influx. 3 sodium outflux and 3 potassium influx. So these are the status of channels and these are the flow of, your direction of flow of ions through these respective channels, sodium, potassium and sodium potassium ATPase pump. So regarding this beautiful concept, here are some common question to some advanced question. The question number 1 is, what is nerve or what is neuron? In the first lecture or in the beginning of this topic, I have told you what is nerve, what is neuron. You just have to answer bundle of axons. This is the nerve. The second question, minimum value of change in the membrane potential for the conduction. What is it called? The threshold value. Threshold membrane potential. And common approximate value क्या होती है इसकी? -55 millivolt. -55 millivolt for the most of the neuron. Refractory period, कौन कौन सी phases इसमें आती हैं? Repolarization, hyperpolarization and up to
न्यू रेस्टिंग कंडीशन, तो वी कैन इंक्लूड रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन. नाउ व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड? जिस टाइम पे न्यूरॉन किसी भी कंडीशन पे, भगवान भी आ जाए तो भी नया कंडक्शन नहीं प्रोसीड करेगा, दैट इज द टिपिकली हाइपरपोलराइज्ड स्टेट. दिस इज द वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, और हम पूरे कॉन्सेप्ट को कंपाइल कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं विद दिस सिंगल क्वेश्चन. स्टेजेस यहां पर आपकी लिखी हुई है कि कौन सी न्यूरॉन की स्टेजेस है, मेम्ब्रेन की स्टेजेस है, और यहां पे प्रीडोमिनेंटली कौन से आयन चैनल्स ओपन होते हैं बिफोर थ्रेशोल्ड. एज सून एज स्टिमुलस कम्स, इट स्टार्ट डीपोलराइजिंग द मेम्ब्रेन, स्टार्ट चेंजिंग द पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन. तो कौन से चैनल होते हैं जो थ्रेशोल्ड के पहले, यानी एक सर्टेन वोल्टेज लिमिट के पहले ओपन होते हैं? द आंसर विल बी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल. ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन प्रीडोमिनेंटली कौन से चैनल ओपन होते हैं? सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. और ये करते क्या है? वन सोडियम इनफ्लक्स एट अ टाइम. ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन प्रीडोमिनेंटली चैनल कौन से ओपन होते हैं? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल. और ये करते क्या है? पोटेशियम आउटफ्लक्स. एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पोलैरिटी क्या ओपन होता है? ओपन होता है या स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. और ये क्या करता है? 3 सोडियम outflux and 2 potassium influx.